students. I hope you all are well. So today we are going to start a very interesting and very new topic, that is permutation combinations. This topic you will find very near to real life situations. See, like arrangements, what kind of arrangement? Sitting arrangements, and making two digital number, three digital number, and the you do that, the digital lock, numbers are given to you, then you have to lock anything, you have to make the arrangements, because the particular 3 digit number, 4 digit number may open the lock and may close the lock. So that kind of numbers, problems, real life situations we are going to discuss here. Though there is no any kind of new mathematical concept, we will take the topic with addition, some counting principles, fundamental principles of counting I will discuss as first. Then later on we will go for permutations and combinations. So see, with the help of examples I am going to make the chapter comfortable for you. So children, try to understand all that problems, and you will go for your book so that you will be able to do more and more questions. So let's get started the topic. Let's come to the topic, right? Already I have a discussion with you that what I am going to do today. See, fundamental principle of counting, what I am going to tell you, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. दो काउंटिंग ऑलरेडी यू हैव डन, आप हर छोटी क्लास से काउंटिंग ही करते आए हैं. दिस इज एडिशन एंड दिस इज मल्टीप्लीकेशन, यू नो ऑल दिस. बट what are the fundamental principles, what I am going to do in class 11th, that is very crucial. This topic is very important. When you will go to 12th standard, you need this, and if you go for higher mathematics or any kind of competition, you know you need this topic everywhere. So let us come to this principle of addition. Look here, what is addition? Suppose these things, I have the 3 sketch pens and 2 pencils. All right, what do I have? I have 3 sketch pens and 2 pencils. Now if I want to take any one of them, either a pencil or a sketch pen, मुझे एक चीज चाहिए इनमें से, तो how many choices do I have? I have 5 choices. मैं इसे ले लूँ, इसे ले लूँ, इसे ले लूँ, इसे ले लूँ, इसे ले लूँ. कितनी चॉइस है? 5. इन 5 में से मैं किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकती हूँ. तो हाउ मैनी, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. वन ऑब्जेक्ट occurs m different ways and another object occurs n different ways. So either of them will occur by m plus n different ways. This is the mathematical definition of fundamental principle of addition. Now see, if I come to multiplication में मैं जाती हूँ, क्या है? अगेन द सेम थिंग. मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं और 3 पेन्स हैं. आई नीड 1 पेंसिल एंड 1 स्केच पेन. एंड अब क्या आ गया? एंड बहुत ही जरूरी. देखो मेरे पास ये हैं 3 स्केच पेन और ये हैं 2 पेंसिल. अब मुझे क्या लेना है? ये भी लेना है. एंड क्या लगा दिया? एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर एंड आ जाएगा वहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई. मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, मुझे दोनों चीजें चाहिए. और इसमें क्या था? मुझे एक ही चीज चाहिए. ऑलराइट, मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए. मैं आई नीड बोथ द थिंग्स. सो फॉर दिस केस आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई. एंड व्हाई आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई? मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ इसको, मैं ये बताने वाली हूँ. देखो, अब मैं सबसे पहले, सपोज आई टेक दिस ग्रीन पेन. इस ग्रीन पेन के करस्पॉन्डिंग में ग्रे पेंसिल भी ले सकती हूँ और इसे भी ले सकती हूँ. तो हाउ मेनी चॉइसेस फॉर दिस ग्रीन पेन? 2. कितनी चॉइस होगी ग्रीन पेन के लिए? तो सपोज आई डोंट टेक दिस ग्रीन पेन, मुझे नहीं अच्छा लगता. आई वॉन्ट टू टेक दिस पेन.
अब इसके लिए भी आई कैन गो फॉर द ग्रे। अब मैंने देखा ये ग्रे अच्छी लग रही, मुझे ये अच्छी लग रही, तो अगेन 2 हो गई। और फिर ये ब्लू स्केच पेन के लिए भी हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव? 2। तो कितनी है? 3 इंटू 2। फॉर करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट हेयर डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अकर। क्या कहते हैं इसे? वन इवेंट अकर्स बाय m डिफरेंट वेज। क्या बोला? सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आया समझ में? इसके करस्पॉन्डिंग में इसे इन दोनों में से किसी को एक को ले सकती थी, इसके करस्पॉन्डिंग भी। तो हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव? 6 चॉइसेस। इनमें से कोई एक 3 और इनमें से कोई एक 2, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। सी लुक हियर नाउ, व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ओवर है? मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है? इफ एन इवेंट अकर्स बाय m डिफरेंट वेज एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच अकरेंस, इसके जैसे ये था ना, करस्पॉन्डिंग टू ईच अकरेंस, इस पेंसिल के करस्पॉन्डिंग ईच अकरेंस, ईच माने इसके करस्पॉन्डिंग टू, इसके करस्पॉन्डिंग भी 2 और इसके करस्पॉन्डिंग भी 2, करस्पॉन्डिंग टू ईच अकरेंस अनदर इवेंट अकर्स बाय n different ways. तो both of them, this is important, both of them will occur by m into n different ways. ये है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इन पे डिपेंड होने वाले हैं आपके ये सारे प्रॉब्लम एंड इवन होल द चैप्टर। जो परमिटेशंस आपका चैप्टर है वो इन्हीं 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड रहेगा। सो सी लुक एट अनदर एग्जाम्पल। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ? आई हैव दीज 4 कार्ड्स। ये मेरे पास 4 कार्ड्स हैं, देखो 1 2 3 4 कार्ड, ठीक है ना? देर आर दीज आर द 4 कार्ड्स। फाइन, ये मेरे पास 4 कार्ड है। अब मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू मेक अ 2, मुझे 2 डिजिटल नंबर बनाना है, ठीक है? एक 2 डिजिट नंबर बनाना है। व्हाट हाउ मेनी चांसेज, और मैं हम कितने तरीके से उसको बना सकते हैं। सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, देखो मैं ये 1 लेती हूँ, ये 1, सपोज आई सेलेक्ट दिस 1। अब इस 1 के करस्पॉन्डिंग में 1 2 बना सकती थी, 1 मेथड, ठीक है ना? 1 के करस्पॉन्डिंग आई कैन राइट 1 के करस्पॉन्डिंग व्हाट कैन आई डू, 1 2 बना दिया मैंने। 1 के करस्पॉन्डिंग आई कैन मेक 1 3, ऑल राइट। एंड 1 के करस्पॉन्डिंग मैं क्या बना सकती थी? 1 4। 1 के करस्पॉन्डिंग 2 डिजिट नंबर ऐसे बन सकता है। ये कार्ड है, दीज आर द 4 कार्ड्स। एंड एक मेथड तो ये है, अभी और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज? सपोज आई टेक फर्स्ट 2, सपोज मैंने 2 ले लिया। अब 2 के करस्पॉन्डिंग में क्या कर सकती थी? 2 के करस्पॉन्डिंग में 2 1 ये बना दूं, मैं 2 3 बना सकती हूँ। 2 3 मेरे पास हो सकता था, या फिर 2 4 हो सकता था, ऑल राइट। नाउ सिमिलरली फॉर 3, अगर मैं कार्ड नंबर 3 लेती हूँ तब भी मेरे पास 3 1 3 2 3 4, एंड इफ आई टेक 4 4 1 4 2 and 4 3. So how many different ways are there? See, look here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितने मेथड आ गए? 12. अब हमने किया क्या इसके लिए? लुक हियर, व्हाट आई डिड, ये जो फर्स्ट कार्ड है, ये कार्ड, इसमें 4 मेथड्स हैं। मैं इस 4 में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकती थी। पहला कार्ड सेलेक्ट करने के कितने मेथड हैं? सी लुक हियर, हाउ मेनी कार्ड्स डू आई हैव? 4। मैं किसी भी कार्ड को, इसको उठाऊं, इसको उठाऊं, इसको उठाऊं, इसको उठाऊं, कितनी चॉइस है? 4। देखो किसी को भी उठा लिया, हाउ मेनी चॉइसेस? 4। तो पहला कार्ड उठाने के 4। अब सपोज मैंने 2 अपने पास रख लिया, ये 2 था, ये कार्ड थे, ये 2 मैंने अपने पास रख लिया। अब यहां पर लिख, इसके करस्पॉन्डिंग, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या थी? इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, और भी चाहिए इनमें से। मैंने बोला ये चाहिए और भी इसके साथ भी चाहिए मुझे, तो क्या हो गया? तो इसके साथ चाहिए, तो अब कितनी चॉइस बची मेरे पास? अब तो 3 बचे, और ये 2 डिजिट हो गए, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट। तो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? 12. दिस वे यू आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस,
All right, I think this is again clear. Now if I go for another, similarly मैं किसी और तरीके का क्वेश्चन करने जाऊँ. सपोज सी आई हैव, मेरे पास क्या है, सपोज अ चाइल्ड हैव 2 शर्ट्स, उसके पास कितनी है, 2 शर्ट हैं, 2 पैंट ले लो, 2 पैंट्स, 3 शर्ट्स, ठीक है, एंड 2 टाइज. ऑल राइट, 2 टाइज हैं उसके पास. तो हाउ मेनी वेज कैन ही ड्रेस अप, हाउ मेनी वेज कैन ही ड्रेस अप. अब वो क्या करेगा, सबसे पहले पैंट की चॉइस कितनी है, 2 में से कोई भी एक. अब पैंट के साथ ये भी तो चाहिए उसे, शर्ट भी चाहिए इंटू 3, और साथ में टाई भी चाहिए उसे. ये सब चीज़ें चाहिए तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. ऑल राइट, दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 2. दिस इज द आंसर. नाउ इफ आई गो फॉर अनदर क्वेश्चन, सी लुक हियर. अब मैं जाती हूँ बुक में, मैं आई एम गोइंग टू अ बुक. आई शो यू अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर बुक. इट इज, सी लुक हियर, इस बुक में क्या लिखा है. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ यू गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिटन in a class of 22 girls, in a class of 22 girls and 17 boys, a teacher wants to select either a girl or a boy representative to represent the class in a function. अब उसे क्या चाहिए टीचर को, either a boy or a girl. देखो, एक क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही तो मॉनिटर होगा, ठीक है ना. उसमें क्लास में क्या थे, 22 बॉयज हैं एंड 17 क्या है, 17 है गर्ल्स, 17 गर्ल्स. आपने क्या करना है, एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है. यू हैव टू सेलेक्ट अ मॉनिटर. उस मॉनिटर के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पूरी क्लास में देखेंगे, पूरी क्लास में जो भी हमें क्या लगता है, बच्चा हमें लगता है कि हाँ दिस विल, ही विल माइंड और सी विल माइंड. तो पूरी की पूरी क्लास कितनों की है, 39 की है. तो हाउ मेनी वेज आई हैव, 39. दिस इज व्हाट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. यहां पर ऐड हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मुझे एक ही चाहिए था, ईदर अ बॉय और अ गर्ल. और अगर अब मैं बोलूं कि हम लोग क्लास में करते हैं ना, नहीं जी ये तो गर्ल मॉनिटर होगा, ये बॉय मॉनिटर होगा, तो बॉय को मुझे बॉय भी चाहिए एंड गर्ल भी चाहिए. तो व्हाट आई विल डू, एंड बोला मैंने, क्या बोला, and this is 22 into 17. All right, 22 into 17. Now so let us go for this question. What is it, how many 3-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 and 6. इसके 2 parts हैं. First part, if digits can repeat, if digits repeat. All right, if digits repeat. और second part, if the digits do not repeat. मतलब क्या है इसका, देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है और वो भी होना है इवन नंबर. ये डिजिट्स दिए, यूज करना है, जैसे लाइक क्या 1 2 2, ये क्या है 3 डिजिट इवन नंबर है ये, और इसमें डिजिट्स रिपीट हो रही है. ऑल राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 2 2 एंड आई कैन राइट 2 2 2, ये भी मैं लिख सकती हूँ. और 3 डिजिट नंबर बनाना है तो यू नो वो कैसा नंबर होगा वो, अब लिखोगे यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस. पहले तो इन प्लेसेस को आप लिख लो, यूनिट्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड टेंस प्लेस. अब फिल करें सबसे पहले विच प्लेस, सिंस दिस इज अ 3 डिजिट नंबर सो वी विल स्टार्ट फिलिंग इट्स यूनिट्स प्लेस. इवन नंबर बनाना है तो यूनिट्स प्लेस को फिल करो. यूनिट्स प्लेस को फिल करने के हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, 3. देखो यूनिट्स प्लेस में या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा. यूनिट्स प्लेस को फिल करने के कितने मेथड हैं, 3. राइट, देन ये टेंस प्लेस, अब रिपीटिशन अलाउड है. टेंस प्लेस में आप 2 भी लिख सकते थे, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना 2 2 2, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6. इस हंड्रेड्स टेंस प्लेस को फिल करने के कितने मेथड हैं, 6. और हंड्रेड्स के भी कितने आएंगे, 6 आएंगे, क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस में भी कोई भी नंबर आ सकता है. 3 डिजिट नंबर बनाना है. देखो यूनिट्स प्लेस को फिल करने के हाउ मेनी मेथड्स,
3 मेथड्स, यूनिट्स प्लेस के 3, ये भी चाहिए, टेंस भी चाहिए और ये भी एंड आ रहा है, ये बहुत ध्यान देना आप। तो दिस 6 into 6 into 3, व्हाट इज द आंसर? 108। अब हम आपसे बोल रहे हैं नेक्स्ट में, मैंने बोला रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सो सी चिल्ड्रन, यूनिट्स प्लेस को फिल करने के तो फिर भी हमारे पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड है। सपोज मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, अब जो यूनिट्स प्लेस में मैंने 2 लिख दिया है, आई विल रब दिस, यूनिट्स प्लेस में सपोज मैं 2 लिख देती हूँ, तो टेंस प्लेस में 2 नहीं लिख सकती हूँ, क्या लिखूंगी? यहाँ 5 लिखूंगी। और हंड्रेड्स प्लेस में क्या है? अब हम 5 नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे? 6। दिस इज 1 नंबर, ये क्या है? ये 1 नंबर है ये। ऑल राइट, सो यूनिट्स प्लेस को फिल करने के 3, अब जो टेंस प्लेस होगा उसको फिल करने के कितने मेथड हुए? इसमें से हमने क्या ले लिया? एक सपोज 2 ले लिया, ये लुक हियर, 1 2 3 4 5 6, सपोज मैंने ये 2 फिल कर लिया, ये 2 नहीं बचा मेरे पास। अब बचे कितने? 1 2 3 4 5। टेंस प्लेस को फिल करने की कितने मेथड हो गए? 5। एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस, सपोज मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया था, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर लेफ्ट? 4। दिस इज माई आंसर। अब की बार मेरा आंसर कितना होगा? 60 डिजिट्स डू नॉट रिपीट में कितना आएगा आंसर? 60। ऑल राइट, ओके, नाउ कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपके पास क्या है? 5 फ्लैग्स हैं। देखो 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, फ्लैग नंबर डिफरेंट कलर के फ्लैग्स। आई कैन गो फॉर 5 कलर के उसके लिए आई कैन गो फॉर दीज स्केच पेन। सपोज आप ये फ्लैग ले सकते हैं। ऑल राइट, ये 5 कलर के डिफरेंट 5 आई नीड दीज 5 टू दीज आई हैव आई नीड 2 डिफरेंट कलर्स मोर स्केच पेन। सपोज मैं इसको फ्लैग मान लेती हूँ। देखो ये मेरे पास 5 फ्लैग हो गए। देखो दीज आर द 5 डिफरेंट कलर फ्लैग्स। ऑल राइट, सपोज ये मेरे पास फ्लैग है। अब मुझे क्या करना है? आई हैव टू मेक अ सिग्नल। सिग्नल बनाने इसे आपने देखा होगा ना, कई बार सिग्नल कहाँ बने होते हैं मालूम है? जब कोई शॉप खुली होती है, आपने ढाबे देखे होंगे, ढाबे के बाहर भी वो फ्लैग जैसे लगे होते हैं। मुझे फ्लैग बनाने, सिग्नल बनाने, सिग्नल। अब पहले में क्या लिखा है? देखो फर्स्ट में लिखा है 2 फ्लैग्स। इफ द ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। मुझे एक बार में 2 फ्लैग्स यूज करने हैं। देखो दीज आर द फ्लैग्स। हम क्या कर सकते थे? मैं ये बना सकती थी, ठीक है, दिस इज 1 सिग्नल एंड आई कैन मेक अनदर सिग्नल, दिस इज अनदर सिग्नल। मतलब इस ब्लू के करस्पॉन्डिंग दिस इज, देखो ये भी हो सकता था मेरा, और मेरे पास एक और हो सकता था, मेरे पास ये भी हो सकता था। तो दीज आर द सिग्नल्स। ये सिग्नल मैं बना सकती थी, मैं ये सिग्नल बना सकती थी, मैं ये सिग्नल भी हो सकता था, और ये सिग्नल भी हो सकता था। दिस वे आई कैन मेक द सिग्नल्स। अब हाउ मेनी वेज आर देयर? इसके मेथड कितने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये ब्लू के करस्पॉन्डिंग, अभी मैंने आपको बताया था, ब्लू के करस्पॉन्डिंग वी हैव टू यूज 2 फ्लैग्स। ब्लू के करस्पॉन्डिंग कितने हैं? ब्लू के करस्पॉन्डिंग ये आ जाएंगे 4, ठीक है। सिमिलरली ग्रीन के करस्पॉन्डिंग एंड सिमिलरली, तो मीन्स व्हाट, फर्स्ट फ्लैग को अब मैं करूंगी क्या इसके लिए? बार बार तो आई एम नॉट गोइंग टू काउंट। तो फॉर फर्स्ट फ्लैग मुझे उठा के क्या करना है? इस फ्लैग को यहाँ सिग्नल में लगा देना है। हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट? देखो फर्स्ट फ्लैग को सेलेक्ट करने के कितने मेथड है? 5। ऑल राइट, देन सपोज मैंने कोई भी सिग्नल मैंने ये उठा लिया। अब सेकेंड फ्लैग लगाना है, मैंने ये लगा दिया ना, यहाँ पर ये मैंने बना दिया। अब जो दूसरा मैं फ्लैग ढूंढूंगी उसके लिए हाउ मेनी मेथड्स डू आई हैव? आई हैव 1 2 3 4। कितने मेथड हो गए? 4। तो दिस वे आई विल मेक द सिग्नल। ये क्या है? 2 फ्लैग्स एट ए टाइम, जबकि क्या है मेरे पास? फर्स्ट पार्ट का आंसर इज व्हाट? 5 × 4। अब सेकेंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो व्हाट इज सेकेंड पार्ट?
सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स एट ए टाइम। अब मैंने कम से कम, देखो मेरा सिग्नल ऐसा भी हो सकता था, कम से कम 2 तो मैंने लेने ही, मेरा सिग्नल ये भी हो सकता था और मेरा सिग्नल ऐसा भी हो सकता था। ये 2 एट ए टाइम 2 वाला बन सकता था, मेरा सिग्नल 3 वाला भी बन सकता था। मैं 3 फ्लैग एक बार में लेती, देखो 3 फ्लैग वाला कैसा बनेगा, ऐसा बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना, ये ऐसा भी बन सकता है, कई सारे मेथड होंगे अभी बताऊंगी। एंड ये ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था। तो ऐसे बार बार चेंज करते जाएंगे तो मीन्स 2 एटलीस्ट 2 का क्या मतलब है, कम से कम 2 फ्लैग तो चाहिए, 2 से ज़्यादा कितने भी, 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते थे। और मेरा सिग्नल ऐसा भी हो सकता था। अब इस सिग्नल को मैं चेंज भी कर सकती हूँ, देखो इसके भी कई सारे मेथड्स होंगे, दिस वन एंड इसके, ये देखो ये भी अलग बन गया, ठीक है ना। और आप कहोगे नहीं मैं तो ऐसा बनाता हूँ, अगेन आई हैव टू एडमिट, मैं तो बोलूँगी हाँ भैया ठीक है जैसा भी तू बना ले, बट दिस इज द सिग्नल 4 एट ए टाइम एंड आई कैन मेक द सिग्नल टेकिंग। हमने बोला नहीं मैं तो 5 के 5 फ्लैग ले लेती हूँ फिर बना देती हूँ, तो 5 एट ए टाइम मीन्स व्हाट इज देयर, सी लुक हियर, सिग्नल कितने टाइप के बनेंगे, टेकिंग फ्लैग्स 2 एट ए टाइम, एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2, मैं 3 फ्लैग्स एट ए टाइम, 4 फ्लैग्स एट ए टाइम और 5 फ्लैग्स एट ए टाइम, 2 फ्लैग्स एट ए टाइम, all right, taking 2 flags at a time, taking 3 flags at a time, 4 flags at a time, 5 flags at a time. अब number of ways 2 flags at a time, अभी मैंने आपको बताया था 2 flags at a time का कितना है, 5 into 4, पहले को सेलेक्ट करने के 5, दूसरे 4। अब 3 के कितने होंगे, देखो टेकिंग 3 एट अ टाइम, हमने क्या करना है 3 फ्लैग्स को लेकर के सिग्नल बनाना है। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट फ्लैग को सेलेक्ट करने के कितने मेथड होते हैं मेरे पास, 5, इस ये 1 2 3 4 5, मैं 5 में से किसी भी एक को ले सकती हूँ इसमें से। सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब सेकंड प्लेस के लिए कितने हैं, 4, ऑलराइट, इस 4 में से सपोज मैंने ये ले लिया, अब कितने बचे 3, तो दिस इज 20, ये आप कैलकुलेट करते जाओगे। नेक्स्ट टेकिंग 4 फ्लैग्स एट ए टाइम, फिर से पहले फ्लैग को लेने के 5 मेथड, सेकंड के 4, फिर 3, अब 2 ही रहेंगे, और फिर 5 into 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो दीज मैनी मेथड्स आर देयर। अब देखो अब क्या करोगे, इसके बाद ऐड करोगे, क्यों करोगे, या ये बनाऊंगी मैं या ये बनाऊंगी, या ये हो सकता है या ये, ईदर दिस और दिस। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट 2, अगर देखो मैंने 2 फ्लैग्स एट ए टाइम लिया तब भी इट इज डन, तब भी देयर इज नो हार्म। मैंने बोला नहीं नहीं मैं तो 2 फ्लैग्स नहीं, आई एम गोइंग टू टेक 4 फ्लैग्स एट ए टाइम, तो मुझे तो बोला ही गया था टेक एटलीस्ट 2। देखो मेरे आगे 5 फ्लैग्स रख दिए थे, बोला भाई तुमको सिग्नल बनाने हैं, लेकिन कंडीशन क्या दे दी थी, कंडीशन ये दे दी थी कि टेक एटलीस्ट 2 एट ए टाइम। आई सेड ओके, कम से कम 2 लेने, मैंने तो 4 ले लिया जी, मैं तो इससे बनाती हूँ, तो अभी कोई डिनाई नहीं कर सकता, यू कांट से लाइक यू आर रॉन्ग, सो आई कैन टेक। मैंने बोला नहीं नहीं मैं तो सबके सब लेती हूँ और देन आई विल मेक सिग्नल। तो ऑल दीज केसेज आर पॉसिबल। अब आप इसको ऐड कर लेंगे, दिस विल बी योर आंसर। आप इसे सबको ऐड कर लो, देखो दिस इज 60, ये 60 होगा, ये 120 है और ये भी 120 है, तो योर आंसर इज 240 60 320। दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट। देन व्हाट इज इन थर्ड पार्ट, 1 फ्लैग एट ए टाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा पार्ट है। देखो कई बार आप मिस्टेक करते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत आसान होता है ना, ऐसा लगता नहीं है आपको कि दिस इज कि सो मच ईजी, दिस कैन बी दिस मच ईजी। टेकिंग 1 फ्लैग एट ए टाइम, एक ही फ्लैग लेना है, ये 5 बचे हुए जो मर्जी मेरे आगे खोल दिए ये हैं, बोलो जी एक फ्लैग का सिग्नल बना दो, तो आई कैन टेक एनी ऑफ दिस। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 5 बिकॉज आई हैव ओनली 5 choices here. Okay, children, see one very very interesting question. क्या लिखा है,
how many ways can 5 different balls be distributed in 3 boxes? अब बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. देखो 5 बॉल हैं आपके पास, 3 बॉक्स हैं. 5, ये these are the 3 boxes. All right. And balls, how many balls? 5 balls. 5 balls be distributed among 3 boxes. इसमें यह भी नहीं दिया कि लाइक एक बॉक्स में या लाइक एक भी बॉक्स खाली ना रहे या एक में 2 आए. कोई नो रेस्ट्रिक्शन इज देयर. कोई भी रेस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है. सो वी कैन सी what can I do, what principle of counting will be here. It is very important to understand. कोई भी बॉल किसी भी बॉक्स में कितनी भी बॉल्स डाल सकती हैं. लाइक मैं 5 के 5 इसी में डाल दूं, ठीक है. मैं 5 के 5 इसमें डाल सकती हूँ या ऑल 5 इसमें. इसको मैं ब्लैंक भी छोड़ सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं गिवन है. तो सी हाउ मेनी वेज आर देयर. फर्स्ट बॉल को प्लेस करने के अब मैं क्या करूंगी. लुक हियर, ये मेरे पास लाइक फर्स्ट बॉल है. ये मैं थोड़ी देर के लिए इनको आप बॉल समझ लीजिए, ठीक है. ये 5 बॉल्स हैं. अब मैं इनमें से फर्स्ट बॉल उठाऊंगी. ये मेरी फर्स्ट बॉल है. इस बॉल को मैं चाहूँ यहाँ रख दूँ, मैं चाहूँ यहाँ रख दूँ, या मैं चाहती हूँ यहाँ रख दूँ. तो फर्स्ट बॉल को प्लेस करने के हाउ मेनी वेज आर देयर? 3. टू नंबर ऑफ वेज, व्हाट आई विल राइट हियर, number of ways to place first ball. To place first ball, how many? 3. All right. Then अब मैंने ये सपोज यहाँ रख दी. अब मैंने उठाया फिर सेकेंड बॉल. सेकेंड बॉल, ये सेकेंड बॉल है मेरी, ये सेकेंड बॉल है. इस सेकेंड बॉल को मैं चाहूँ यहाँ रखूँ, मैं चाहूँ यहाँ रखूँ, मैं चाहूँ यहाँ रखूँ, कहीं भी रख सकती हूँ. मैंने यहाँ रख दी. तो सेकेंड बॉल के भी कितने मेथड हैं. देखो यहाँ भी जा सकती थी, यहाँ भी जा सकती थी, यहाँ भी, क्योंकि इसने बोला तो था नहीं मुझसे कुछ भी, मैंने यहाँ रख दिया. हाउ मेनी वेज आर देयर? 3. सिमिलरली ये थर्ड बॉल है. थर्ड बॉल को आई कैन कीप इट हेयर, आई कैन कीप इट हेयर, आई कैन कीप इट, सपोज मैंने यहीं रख दिया. तो हाउ मेनी वेज आर देयर? 3. दिस वे इस नेक्स्ट के भी कितने मेथड होंगे? 3. 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 raised to the power 5. This will be the answer. All right.